Good morning, students. Let us start our unit number 3 of the book Semiconductor Devices. So, the first topic we start, that is our class A, B, and C amplifiers. So, these are the power amplifier. So, start करते हैं. What is a power amplifier? It is a device which amplify or strengthen the power of input signal into higher output power. मतलब कि लो इनपुट पावर को हाई आउटपुट पावर के अंदर कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं पावर एम्पलीफायर. ये हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम है. नाउ you can see from the block diagram that we have applied input voltage and input current. VI is the low input voltage and II is a low input current. हमने इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया है वोल्टेज एम्पलीफायर के ऊपर. ये डिवाइस क्या करेगी, ये वोल्टेज को स्टेप अप कर देगी. मीन्स लो वोल्टेज विल कन्वर्ट इनटू हाई वोल्टेज, but current will remain the same, that is low current. Now this signal is further provided to the power amplifier which will step up the current. यानी कि वोल्टेज आपकी सेम रहेगी और जो आपका लो करंट है that will convert into high current signal. So basically we will get high voltage V0 and high current I0 in the output. So output power would become equal to V0 into I0, and we know already input power is equal to VI into II. Now it is clear from the block diagram that V0 is greater than VI, output voltage is greater than input voltage. Similarly, output current is greater than input current, then obviously output power will become greater than the input power. So this is the block diagram for the power amplifiers. Next हम बात करते हैं classification of power amplifier. Basically we classify the power amplifiers in various classes, but the main classes which are in your syllabus are three, that are class A amplifier, class B amplifier and class C amplifier. So पहले हम बात करते हैं क्लास ए एम्पलीफायर की. So these classes of amplifier, class A, class B, class C, these are classified on the basis of selection of quiescent point on the DC load line. Quiescent point means operating point या फिर Q point. मतलब it is a set of values किस किस की, कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज का और कोलेक्टर करंट की, जिस वैल्यूज के ऊपर ट्रांजिस्टर आपका ऑपरेट करता है उसे हम बोलते हैं क्यू पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट. ठीक है. तो डीसी लोड लाइन के ऊपर हमने क्यू पॉइंट को कहाँ पर सिलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करते हुए हमने एम्पलीफायर को तीन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी. यहाँ पर VCE is called your output voltage and IC will be known as your output current. And here we are going to use in all the three, class A, class B, class C, common ammeter transistor configuration. And we know in the common ammeter transistor IB base current will act as input current. So you must be clear that IB base current will act as input current and collector current will act as output current. Okay, let us start our class A amplifier and its features. So in class A amplifier, the quiescent point या फिर Q point is selected at midpoint of DC load line of output characteristics of common ammeter amplifier. Common ammeter amplifier के जो characteristics है वो हम स्टडी कर चुके हैं. These are drawn between collector emitter voltage and collector current, according to which for a constant value of base current IC will increase linearly in the starting and then becomes
कांस्टेंट एंड दीज कर्व्स आर ड्रॉ की गई है ये फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई बी. लाइक दिस कर्व हैज बीन ड्रॉन फॉर आई बी इक्वल टू 0 माइक्रो एम्पियर. मीन्स हमने जब इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, इनपुट में हमने कोई बायसिंग अप्लाई नहीं की है, दिस कर्व कम्स फॉर दी आई बी इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर. This curve comes for the IB is equal to 20 microampere and so on. So this is called output characteristics. Now यहाँ पर हम पहले प्लॉट करेंगे DC लोड लाइन. We will select two values, one on the VCE axis, this is the point, and one on the IC axis. DC लोड लाइन की कॉन्सेप्ट में हम ये पॉइंट कर चुके हैं. वहां पर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करके कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के अंदर डीसी लोड लाइन को प्लॉट किया था. सो नाउ इस डीसी लोड लाइन के ऊपर क्यू पॉइंट हमारा इन केस ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर कहां पर होगा? बिल्कुल इन द मिड पॉइंट. ठीक है, इस लोड लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर हमने क्या किया, अपना क्यू पॉइंट यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट सेलेक्ट किया है. ठीक है, ओके. नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इनपुट करंट और आउटपुट करंट को ड्रॉ करते हैं. सो हम क्या करते हैं, डीसी लोड लाइन के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है, वन हेयर एंड वन अबो इट एंड वन बिलो इट. द अबो लाइन इंडिकेट फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेस करंट एंड below line indicates for the minimum value of base current, because we know that the current is of AC nature and will fluctuate with respect to time. ठीक है, now just corresponding to these points, like आप देख लीजिए मैक्सिमम पॉइंट आपका यहाँ लाइक कर रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, अगर हमें ऑब्टेन करना है कोलेक्टर करंट तो हम क्या करेंगे, कोलेक्टर करंट एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. ये हमने ड्रॉ कर दिया. सिमिलरली फ्रॉम हेयर वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन द कोलेक्टर करंट एक्सिस. ये हो गया. सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द कोलेक्टर करंट एक्सिस. ये हो गया आपका. ठीक है, देन अगेन वी विल ड्रॉ अ कर्व. नाउ दिस कर्व विल इंडिकेट द कोरस्पॉन्डिंग कोलेक्टर करंट, यानी कि इस इनपुट करंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर आपका कोलेक्टर करंट ऑब्टेन हो रहा है हमारे पास. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको ऑब्टेन करनी है कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ऑन द कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज एक्सिस के ऊपर. ये हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. ठीक है, एंड द अगेन कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज कर्व विल हैव दिस शेप हमारे पास, बिकॉज ऑल द सिग्नल्स आर ऑफ एसी नेचर, सो वी हैव जस्ट ड्रॉन अ साइन वेव. इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो इस कर्व को मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, IB को, IC को मैंने यहाँ अपलोड कर दिया और VC को मैंने यहाँ अपलोड कर दिया. क्लास ए एम्पलीफायर की एक जो फीचर है वो ये रहेगी हमारे पास, अगर आपका इनपुट करंट पॉजिटिव पोलैरिटी का है तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट वुड बी ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, यानी कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा. There would be a phase difference of 180 degree between the input signal and the output signal. I can say between the input current and the output voltage. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके about features of this. Now features of class A amplifier. Now you can see here that number 1, input waveform of this nature, of sine wave nature, 0 से pi, 2 pi, 3 pi and 4 pi and continuous. Now corresponding to this input waveform, अगर आप ड्रॉ करते हैं आउटपुट वेवफॉर्म को, then you will have this like shape which is similar to input waveform. डिफरेंस क्या है, केवल यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो आपका इंक्रीज हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास. ठीक है, सो यू व्हाट यू ऑब्जर्व है दैट for a given cycle of input signal you will have output for the complete cycle. कहीं भी आपका जो सिग्नल है आउटपुट के अंदर वो ब्रेक नहीं होगा, और वो क्लियर है इस डायग्राम से that for the complete input signal you will have complete output signal. ठीक है, ओके.
So therefore I will say that class A amplifier कंडक्ट करते हैं for the whole cycle, for the whole AC cycle. इसलिए बोलते हैं कंडक्शन एंगल क्या है इसका 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई है, 2 पाई. ठीक है, देखो यहां से गया 2 पाई, अगेन स्टार्ट 2 पाई, अगेन स्टार्ट 2 पाई, मीन्स फॉर द कंप्लीट साइकिल वी आर गेटिंग द आउटपुट. नाउ नंबर थर्ड, एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर इज लो. क्लास ए के अंदर जितने भी आपके एम्पलीफायर आते हैं उनको जो एफिशिएंसी है दैट इज रेशो ऑफ आउटपुट बाय में रेशो ऑफ इनपुट इज लो. वो इसलिए होती है बिकॉज यहां पर हम देख रहे हैं जो आपकी इनपुट वेवफॉर्म है दैट इज अकरिंग फॉर द कंप्लीट साइकिल. इसके और भी रीजंस हैं जो हम नेक्स्ट टॉपिक में आएगा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, वहां पर इसको ऑब्जर्व करेंगे. एंड द मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर एफिशिएंसी जो होती है विद रेजिस्टिव लोड इज 50%. मीन्स अगर आप आरएल का यूज करके क्लास ए एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं यू विल गेट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 50%. दैट इज वो इनपुट सिग्नल के हाफ को ही आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है और बाकी जो अपना सिग्नल है आपका वो हीट की फॉर्म में स्पेंड होता है आपका. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, क्लास ए एम्पलीफायर हैज द हाईएस्ट linearity and lowest distortion among all the other classes. Now highest linearity and lowest distortion means यहाँ पर जो नॉइज है आपका, नॉइज की जो वैल्यू है इट इज वेरी स्मॉल. जनरली जो नॉइज है इन द सिग्नल अक्कर करता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द सिग्नल. अगर आपका सिग्नल मान लीजिए यहाँ पर आपका सिग्नल आ रहा है आउटपुट के अंदर, अगर ये किसी पॉइंट पर ब्रेक करता है तो वहीं पर हमारे पास क्या होता है, नॉइज जनरेट होता है. बट इस सिग्नल जो आपका है कंप्लीट साइकिल के लिए आ रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे यहाँ पर हाईएस्ट लिनियरिटी है एंड लोवेस्ट डिस्टोर्शन है. पॉइंट नंबर 5, इट इज जनरली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ ऑडियो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स. तो उसका जो बेसिक यूज है वो ऑडियो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, ऑन द सिमिलर बेसिस वी विल स्टार्ट अवर क्लास बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर. सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास बी एम्पलीफायर. नाउ इन द क्लास बी एम्पलीफायर आई विल से in this class of amplifier Q point is selected at the bottom of the DC load line on VCE axis. अब ये आपका है VCE एक्सिस, इसके ऊपर हमने DC लोड लाइन का जो बॉटम पॉइंट है यहाँ पर हमने Q पॉइंट को सेलेक्ट किया है. ये सबसे बेसिक डिफरेंस है क्लास बी एम्पलीफायर का क्लास ए एम्पलीफायर से. ओके, in this case amplifier remains in cutoff mode oblique region for half cycle. It is clear to you. Now you will see here that अगर आप यहाँ पर इनपुट अप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज कट ऑफ रीजन. नाउ हम कहते हैं IB इज इक्वल टू 0, वो कर्व और उससे जो नीचे वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन. यानी कि इस कर्व से लेकर इस कर्व के इस लाइन के बीच में जो रीजन होगा इसे हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन. नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर दैट इसका कुछ पोर्शन तो ऐसा है जो कट ऑफ में आ रहा है और कुछ क्या आ रहा है आपका एक्टिव मोड के अंदर आ रहा है. जैसे कि ये आपका रीजन है इट इज इन द एक्टिव रीजन और ये आपका कहाँ पर आ रहा है, कट ऑफ के अंदर आ रहा है हमारे पास. तो हम कहेंगे इसमें जो एम्पलीफायर आपका वो हाफ साइकिल के लिए कट ऑफ रीजन के अंदर रहता है. नाउ अब बात करते हैं, ये आपका इनपुट सिग्नल है हमारे पास, समझिए आप. ठीक है, ये दिखा रहा है IB की मैक्सिमम वैल्यू और ये शो करता है IB की मिनिमम वैल्यू. अगर हमें इससे कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है आउटपुट करंट यानी कि IC निकालना है और आपको निकालनी है आउटपुट वोल्टेज यानी कि VCE निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन द IC एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऑन द VCE एक्सिस. नाउ यू कैन इजीली सी हियर दैट अगर हमें निकालना है आउटपुट करंट IC निकालना है तो हम कर्व ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ. ठीक है, और हम जानते हैं कि जो करंट की वैल्यू है इससे नीचे नहीं जाएगी बिकॉज दिस इज 0 वैल्यू ऑफ IC. ठीक है, सो यू विल सी दैट आपकी जो कर्व बन रही है इस तरीके से बनेगी.
बट इस पोर्शन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज गोइंग बिलो 0. ठीक है, तो व्हाट यू विल सी दैट फॉर अ गिवन इनपुट सिग्नल यू आर गेटिंग आउटपुट ओनली फॉर द हाफ साइकिल. जैसे कि 0 से लेकर पाई तक सिग्नल है हमारे पास, पाई से 2 पाई में सिग्नल नहीं आएगा. देन अगेन 2 पाई से 3 पाई में सिग्नल आएगा एंड देन 3 पाई से 4 पाई में सिग्नल आपका नहीं आएगा. ठीक है, इन द सिमिलर वे आउटपुट वोल्टेज क्या आपकी हाफ साइकिल के लिए आ रही है. 0 से पाई देयर वुड बी अ वीसी वोल्टेज, बट फॉर द नेक्स्ट हाफ साइकिल देयर वुड नॉट बी वोल्टेज. ये वोल्टेज नहीं है, ये मैंने काटा हुआ है इसको. ठीक है, सो आपको क्लियर हो गया होगा. आई कैन से यहां पर जो आपका आउटपुट वेव फॉर्म है वो केवल हाफ साइकिल के लिए ही अपीयर हो रहा है. इसको अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूं, यू कैन सी है डैट नाउ द इनपुट वेव फॉर्म तो वही है जो हमने क्लास ए में यूज किया था, बट आउटपुट जो वेव फॉर्म आपका दैट इज गिवन like this, that half cycle, then it is 0, then again for half cycle, then again 0. ठीक है, it means we are getting output waveform only for the half cycle. Now in case of class B amplifier, it conducts for half cycle, therefore its conduction angle would be of 180 degree. Efficiency of class B amplifier is moderate and its maximum value is 78.5%. ठीक है, उसकी एफिशिएंसी है वो 78.5% होती है, और सो इट इज मोर देन एज कंपेयर टू क्लास ए एम्पलीफायर. नाउ क्लास बी एम्पलीफायर हैज लोअर लिनियरिटी देन द क्लास ए एंड हैज स्मॉलर